Hi, and welcome to this life-changing tutorial focused only on verbal ability for CAT examination. Though the emphasis is on CAT, this tutorial can actually be used to develop yourself in the wider spectrum of verbal ability for almost all the competitive examinations in India as well as abroad. So when we talk about verbal ability, there are basically 4 or 5 different types of questions, which is, say, universal to almost all the types of examinations. Only thing that we need to understand is that the degree of difficulty keeps on varying, keeps on changing. For example, CAT is an examination which is majorly focused on the usage part. They do not have any kind of direct antonym synonym kind of questions. It had come once in 1992, and after that I don't think so CAT has ever come up with say vocab based or analogy based questions. Whereas most of the other examinations do have all these kind of patterns which test your vocabulary directly, either through your either through antonyms, synonyms, or analogies. In CAT, it is more about usage. We talk about reading comprehension. We talk about fill in the blanks. We talk about parajumbles. We talk about spotting the error, whether you can actually find out the errors in a kind of sentence, right? And there are certain other verbal logic based questions. So the major thrust, if we talk about CAT, the major thrust has to be given, of course, on reading comprehension. The reason is, suppose I have got 30 questions in my verbal ability section, 25 to 24 to 25 questions would be focused on reading comprehension, right? And the rest, whatever you have, 14, 15, 16, would be based on English usage. And when we talk of usage, there are certain type of questions which are going to be in your paper definitely. That would be your, one would be your parajumbles would be there definitely. There would be say reasoning based questions, critical reasoning based questions would be there definitely. Some sort of question to test your grammatical kind of implementation might be 1 or 2 maximum, and certain questions again based on usage, it might be in the shape of fill in the blanks, or it might be some other different types of questions which CAT always tries to innovate, right? But more or less, if we actually follow this tutorial, अगर ये tutorial हम लोग पूरी तरह से follow करेंगे, तो definitely बाकी जितने भी exams है, वो सारे exams के लिए भी हम लोग का development हो जाएगा, right? So I'll start this particular tutorial, या ये जो session है, ये session में मैं कुछ चीजें के बारे में ही बात करूंगा. एक हम लोग शुरू करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बाद मैं थोड़ा सा देखूंगा कि क्रिटिकल रीजनिंग क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स क्या होता है, और विल जस्ट टेस्ट अ लिटिल बिट ऑफ ग्रामर, right? I may not be going to I may not be discussing all the types of questions, because yes, we need to understand that information overload is also a problem. Okay, so we'll start with reading comprehension, but the major emphasis of this tutorial is to make you understand how to implement the process. अगर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप है, वो क्यों है, और वो क्वेश्चन टाइप अगर है तो हमें उसे किस तरह से आंसर करना है, क्या मेथड है, क्या अप्रोच है, ये मेजर थ्रस्ट होगा इस सेशन. अप्रोच फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. पहले हम लोग ये समझते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता क्यों है, क्या लॉजिक है इसके पीछे. अब देखिए, कल मैं जब एक मैनेजर बनूंगा, कल जब मैं एक एंटरप्रेन्योर बनूंगा, मुझे बहुत सारा लिटरेचर, बहुत सारा रिटन मटेरियल को पढ़ना पड़ेगा. वहां से जो मेन पॉइंट्स है, जो समराइज करना है, समराइज करके शायद प्रेजेंटेशन भी देना पड़े, शायद पॉलिसीज का जो बेसिक से एक्सट्रैक्ट है वो लोगों के साथ शेयर करना पड़े. हम मेरा जो बेसिकली डेटा है, आर एंड डी के बाद जो मेरे को इंफॉर्मेशन मिला है, वो इंफॉर्मेशन को मेरे को प्रेजेंट करना पड़े. So being a manager, there's a lot of literature involved in your day-to-day work. There's a lot of reading involved. There's a lot of things which is directly related to reading comprehension.
राइट अगर मैं सपोज आई एम अहमदाबाद में आई गेट इनटू एन ए पहला दिन इंडक्शन होगा 8 बजे तक देयर विल बी लॉट ऑफ प्रोग्राम्स 8 बजे शायद आपको एक किताब पकड़ा दिया जाए राइट हु मूव माई चीज रिटन बाय डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन और आपको एक टास्क दे दिया जाएगा कि कल सुबह 9 बजे आपको इस किताब का एक 10 मिनट का प्रेजेंटेशन देना होगा सो व्हाट इज योर टास्क नाउ योर टास्क इज जितना भी टाइम है आपको रात में जो भी टाइम बचा है उसमें आपको किताब पढ़ना है समझना है जो मेन पॉइंट्स है उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट करना है और क्योंकि आपका किताब शायद आपको 1-1.5 घंटा लगा होगा पूरा पढ़ने में लेकिन आपका जो क्रक्स है वो क्रक्स आप कितने टाइम में लाओगे सिर्फ 10 मिनट्स में This is why reading comprehension is very important. And the same thing happens when you start off as an entrepreneur or you start off like a business kind of professional. Right? तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मुझे क्या चाहिए देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है प्रॉब्लम ये होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कि वी हैव टू एक्सेप्ट दैट दीज डेज वी आर नॉट गुड रीडर्स आजकल हम लोग के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस आ गया है एंड मोस्ट ऑफ देम आर ऑडियो वीडियो ओरिएंटेड सोशल नेटवर्किंग है यूट्यूब है टेलीविजन है चैनल्स है देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स तो रीडिंग एज ए हैबिट एज ए पैशन एज ए काइंड ऑफ हॉबी हैज कम डाउन और क्योंकि हम लोग का रीडिंग का हैबिट नहीं है तो अचानक मेरा आरसी का पैसेज अगर आ जाता है तो मैं पूरी तरह से अपने आप को खो जाता हूं मैं आई एम नॉट इन ए पोजीशन टू डिसाइड व्हाट एग्जैक्टली कैन बी डन राइट और कैट के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मुझे पता ही नहीं लगेगा कौन सा सब्जेक्ट से कौन सा पैसेज आएगा एंथ्रोपोलॉजी से आ सकता है हिस्ट्री से आ सकता है ह्यूमन इवोल्यूशन से आ सकता है साइकोलॉजी से आ सकता है बिजनेस कॉमर्स से आ सकता है लिटरेचर से कहीं से भी आ सकता है लीगल पैसेज आ सकता है राइट It can come from medicine, it can come from any stream, it can come from any subject. और इसमें और एक प्रॉब्लम क्या हो जाता है सपोज मैं बीकॉम स्टूडेंट हूं तो हाँ कॉमर्स रिलेटेड पैसेज बिजनेस रिलेटेड पैसेज मेरे लिए इजी रहेगा लेकिन वही अगर साइंस रिलेटेड पैसेज हो प्रॉब्लम हो सकता है वही मैं बीएससी का स्टूडेंट हूं तो साइंस रिलेटेड पैसेज मेरे लिए इजी रहेगा लेकिन कॉमर्स या फिर आर्ट्स साइकोलॉजी रिलेटेड पैसेज प्रॉब्लम होगा एज ए रिजल्ट For reading comprehension, we need to develop a habit of diversified reading. मुझे साइंस से भी कुछ पढ़ना होगा मुझे साइकोलॉजी से कुछ पढ़ना होगा मुझे फिलोसॉफी से कुछ पढ़ना होगा फिलोसॉफी से अगर कुछ पढ़ना है तो आपका इंडियन फिलोसॉफी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का लिखा हुआ एक्सेलेंट बुक साइकोलॉजी पढ़ना है तो आयन रैंड का कोई सा भी किताब पढ़ लीजिए एटलस श्रग्ड इज एन एक्सेलेंट पिक राइट साइंस से कुछ पढ़ना है तो स्टीफन हॉकिंस का कोई सा भी किताब पढ़िए कार्ल सगान का पढ़ सकते हैं आप या फिर चार्ल्स डार्विन का ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पढ़ सकते हैं अगर शुरुआत करना है तो वी कैन गो फॉर फिश स्टिक्स हु मूव माय चीज इस तरह का किताब पढ़ सकते हैं यू कैन इवन गो फॉर बिजनेस रिलेटेड काइंड ऑफ रीड्स लाइक मेड इन अमेरिका सैम वाल्टन का लिखा हुआ राइट आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आपका वो जो वॉलमार्ट है वो किस तरह से आया कैसे आया right the Matsuhita story you will understand how Japanese people actually have this intention of bouncing back even after intense kind of disasters right हम लोग शायद काफी सारे सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ रहे होंगे रॉबिन शर्मा पढ़ रहे होंगे एंथनी रॉबिन्स पढ़ रहे होंगे मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये खराब किताब है बहुत अच्छा किताब है बट दिस आर ऑल सेल्फ हेल्प बुक्स जो आपको अपना पर्सनालिटी में निखार लाने के लिए मदद करेगा कैट का आरसी में मदद नहीं करेगा कुछ चीजें होते हैं फिक्शन कुछ किताबें होते हैं फिक्शन वो जहां पे मसाला है चेतन भगत वो सारे कहानियां हैं जिसका फिल्म बनते हैं हिट भी होता है क्योंकि वो पूरी की पूरी तरह से एक सोशल ड्रामा है वो मुझे पढ़ने में भी मजा आएगा क्योंकि वो इंटेलेक्चुअली मेरे को वो क्या नहीं कर रहा है इट इज नॉट चैलेंजिंग मी आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिफरेंशिएट राइट तो हम लोग हमेशा फ्रेडरिक फोर्सिथ हो गया अगाथा क्रिस्टी हो गया ये सारे किताबें पढ़ने में मजा आता है मर्डर मिस्ट्रीज अगर मर्डर मिस्ट्रीज पढ़ना ही है तो शेरलॉक होम्स पढ़िए सर आर्थर कोनन डॉयल का लिखा हुआ से स्टोरीज पढ़िए एटलीस्ट आपका इंग्लिश बहुत मजबूत हो जाएगा बट फॉर कैट वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन नॉन फिक्शन माइट बी इमेंसली बोरिंग क्योंकि वहां पे ज्यादा जैसे इंफॉर्मेशन ज्यादा है मुझे शायद समझ में नहीं आ रहा हो और अगर किताब भी नहीं पढ़ पा रहे एक चीज जरूर कर लीजिए संडे टाइम्स का एडिटोरियल लेके पूरा हफ्ता बैठ लीजिएगा
बहुत सारे अच्छे कॉलमनिस्ट मिलेंगे आपको, अच्छे कॉलमनिस्ट, गुड कॉलमनिस्ट। युग सुरैया आ जाएगा, स्वामीनाथन एस अंकिलेश्वरा अय्यर दिखेगा आपको। समटाइम्स यू माइट हैव शोभा दे, समटाइम्स यू हैव चेतन भगत ऑल्सो, you have Bachchi Karkaria also coming up, right? So these people, they write regularly on, as I said, during on Sundays. You'll have their work in Sunday Times. At least read them. Speaking Tree, that's an excellent read to develop your spiritual content, right? So one thing that is very, very important for CAT, see, if you want to crack CAT, और आपको अगर अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाना है, तो सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। सेक्शनल कट ऑफ, राइट? यानी कि इंग्लिश का कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा, मैथ्स का भी करना पड़ेगा, एलआर और डीआई डीएस का भी करना पड़ेगा। तीनों सेक्शन का इंडिविजुअली कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा आपको। और अगर मुझे इंग्लिश का वर्बल एबिलिटी का कट ऑफ क्लियर करना है, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई डेवलप माई एक्सपर्टीज इन आरसी। ओके, right. Now let us emphasize on how we can solve RCs. I'll take a small kind of abstract so that you understand how to solve. Let's start. CAT verbal ability busted, right? Okay. Reading comprehension में मैंने क्या किया है, जैसे मैंने बताया, तो एक abstract से हम लोग समझते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट मैंने लिया है, कैट का ही पैसेज से लिया है, राइट? लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट मतलब एक छोटा सा पार्ट लिया है। ओके, सो लेट्स रीड इट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या 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 मेथड्स अपने को अप्लाई करना है। आज सिर्फ बहुत ही पेरिफेरल काइंड ऑफ चीजें रखेंगे, बहुत लाइट रखूंगा चीजें, बहुत बेसिक रखेंगे, राइट? सो डोंट वरी। As his work matured, Picasso became more abstract. As his work matured, जैसे जैसे उनका काम मैच्योर होते चला गया, जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ते चला गया। पिकासो, हु इज पिकासो? पिकासो इज दैट वेरी वेरी फेमस पेंटर, है ना? हम लोग ने सब सुना होगा। As his work matured, Picasso became more abstract. Abstract would be things which are not very clear. ठीक है, मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। देयर आर टू टर्म्स यहां पे यूज किया गया है, दो तरह का आर्ट फॉर्म्स के बारे में बात किया गया है। विल डिस्कस अबाउट दैट लेटर ऑन। बट एब्स्ट्रैक्ट इज समथिंग विच इज नॉट विविड, विच इज नॉट वेरी क्लियर, जो हमें आराम से समझ में नहीं आएगा, राइट? तो जैसे उनका वर्क मैच्योर होते चला गया, पिकासो बिकेम मोर एब्स्ट्रैक्ट। क्यों? इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एक्सप्रेसिव क्वालिटी ऑफ हिज वर्क। ठीक है, तो वो क्यों एब्स्ट्रैक्ट काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म में चले गए? क्यों वो एब्स्ट्रैक्ट काइंड ऑफ आर्ट को ज्यादा प्रेफर करने लग गए? द रीजन इज अगेन बिकॉज ही वांटेड टू इंक्रीज द एक्सप्रेसिव क्वालिटी ऑफ हिज वर्क। उनका जो पेंटिंग्स था, वो पेंटिंग्स बहुत ज्यादा एक्सप्रेस, इंफॉर्मेशन पोर्ट्रे करने के लिए, इंफॉर्मेशन सोसाइटी को समझा देने के लिए वो क्या हो गए? एब्स्ट्रैक्ट हो गए। आर्ट फॉर्म्स ज्यादा क्लियरली समझ नहीं आता था। वो क्या है? वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट, राइट? एक्सप्रेसिव क्वालिटी ऑफ हिज वर्क। गुर्निका वाज मेंट एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बॉम्बिंग ऑफ दैट सिटी बाय द जर्मन्स। ठीक है, गुर्निका ये जो पेंटिंग था, ये क्यों था? इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ये ऑब्जेक्टिव था एक प्रोटेस्ट बॉम्बिंग जो हुआ था, गुर्निका सिटी का जो बॉम्बिंग हुआ था जर्मन से, इस बॉम्बिंग का प्रोटेस्ट के हिसाब से ये पेंटिंग उन्होंने बनाया था। एंड टू एक्सप्रेस द टेरर एंड सफरिंग ऑफ द विक्टिम्स मोर विविडली, राइट? जो विक्टिम्स है, बॉम्बिंग के जो शिकार हुए थे, जो विक्टिम्स है, उनका टेरर और सफरिंग को और विविडली, क्लियरली एक्सप्रेस करने के लिए, क्या करने के लिए? उनका जो इमोशन था उसको क्लियरली एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने फिगर्स को डिस्टॉर्ट कर दिया। डिस्टॉर्ट करना मतलब इसको विकृत कर देना, राइट? जो आपका से बर्न विक्टिम्स को अगर आप देखे होंगे, बर्न विक्टिम्स का जिस भी पार्ट में वो बर्न इन्फ्लिक्ट हो जाता है, वो थोड़ा सा मुड़ जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, राइट? विकृत हो जाना। सो उनका जो पेन है, वो पेन को और अच्छी तरह से दर्शा पाए, इसलिए उन्होंने फिगर्स को डिस्टॉर्ट कर दिया और
ब्लैक एंड व्हाइट जर्नलिस्टिक मैनर में इसको प्रेजेंट किया। ठीक है, अब देखिए और एक आर्ट फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इफ ही हैड यूज्ड द रिप्रेजेंटेशनल इमेजेस, रिप्रेजेंटेशनल, तो अभी दो आर्ट फॉर्म्स है, एक एब्स्ट्रैक्ट हम लोग ने पहले सुना था, एक हम लोग अभी रिप्रेजेंटेशनल। ये दोनों आर्ट फॉर्म्स के बीच में इस पैसेज में बेसिकली कंपैरिजन किया गया। तो अगर वो रिप्रेजेंटेशनल आर्ट फॉर्म को यूज करते, ज्यादा इमेज और कलर को यूज करते, जैसा ये जो आप देख रहे हो अभी स्क्रीन पे, ये बेसिकली पूरी तरह से कलर यूज करके एक जैसे एक पेंटिंग यूज किया गया है। ये रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा का पेंटिंग है, और ये जो पेंटिंग है इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशनल टाइप ऑफ पेंटिंग। रिप्रेजेंटेशनल क्यों है? क्योंकि मुझे ये देख के, पेंटिंग देख के समझ में आ रहा है कि ये कोई महिला है, कोई रानी है, फ्रूट का थाली है, तो सब कुछ मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं। ग्रेप्स आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं, जो फ्रूट्स है वो आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं, इयररिंग्स आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं, पीछे पेड़ है वो आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं, राइट। सो ऑलमोस्ट जो यथार्थ में होता है वैसे ही पेंटिंग में भी ऑलमोस्ट फोटोग्राफिक टाइप जो पेंटिंग हो जाता है, दैट इज द रिप्रेजेंटेशनल आर्ट, राइट, रिप्रेजेंटेशनल आर्ट। अब यहां पे पिकासो का ये मानना था, या फिर आप अगर जब ये पैसेज पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा, सभी लोगों का ये मानना है कि रिप्रेजेंटेशनल आर्ट फॉर्म में फीलिंग्स या इमोशन को बहुत ज्यादा मैं दर्शा नहीं पा रहा हूं, राइट। जो मैं फीलिंग्स प्रेजेंट कर सकता हूं थ्रू एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट देखिए मकबूल फिदा हुसैन, ललित मकबूल फिदा हुसैन का एक पेंटिंग है मदर टेरेसा का, राइट, मदर टेरेसा का है। अब यहां पे देखिए मदर टेरेसा का रिप्रेजेंटेशनल फॉर्म्स में बहुत ज्यादा एम्फसाइज नहीं है, लेकिन उनका इमोशन, उनका जो केयरिंग, फिलैंथ्रोपी, लोगों के बारे में, लोगों के लिए जो प्यार, उत्थान का भावना है, वो ज्यादा इसमें ऐसे इंक्लूड किया गया है, दर्शाया गया है, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिप्रेजेंटेशनल एंड एब्स्ट्रैक्ट. The first one, this is the I would say this is the representational art form, and this is the abstract art form. So why had Picasso chosen to go for a black and white journalistic abstract kind of portrait? So that he could represent the emotional content, है ना। अगर वो रिप्रेजेंटेशनल आर्ट फॉर्म में जाते, अगर वो इस तरह का आर्ट फॉर्म में जाते, तो वो इमोशनल कंटेंट को ठीक तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाते. That emotional content would have been lost, and the piece would not have caused the demand for justice. Would not have caused the demand for justice that it did. Okay, समझ में आ गया? It's very simple. तो demand for justice जो create हुआ है, ये जो आर्ट को देख के, गुर्निका जो पेंटिंग था, ये गुर्निका को देख के जो डिमांड फॉर जस्टिस क्रिएट हुआ है, वो इसलिए हो पाया है क्योंकि पिकासो ने वो एक टेरर और सफरिंग को बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर पाए, बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाए, बहुत अच्छी तरह से व्यक्त कर पाए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट, एब्स्ट्रैक्ट और डिस्टॉर्टेड फिगर्स को यूज किया, राइट. वैसे अगर देखना चाहेंगे, दिस इज द गुर्निका, द पेंटिंग, राइट. अब देखिए गुर्निका, इट्स ऑलमोस्ट ब्लैक एंड व्हाइट, पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट है, और पूरी तरह से एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म को यूज किया है, और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म को यूज करते हुए वो जो व्यथा है, वो व्यथा को बहुत अच्छी तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश किया गया है इससे, राइट. सो दिस इज a small abstract of the it's a previous year CAT पेपर का abstract है. अब देखिए मैंने क्या किया, अभी तक आपको क्वेश्चन रिवील नहीं किया है. देखिए कैट में एक चीज जो आपको याद रखना है, हमेशा ये डिबेट भी होता है कि पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूं, ऑप्शंस पढ़ूं कि क्या पढ़ूं, लेकिन मैं ये बोलूंगा देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बट क्वेश्चन जब मैं पढ़ूंगा, see now this is the question, right. In the author's opinion, Picasso's Guernica created a strong demand for justice since, ठीक है, मेरे को एक आइडिया मिल जाता है, ठीक है. लेकिन आप देखो कैट का जो क्वेश्चंस है वो पूरी तरह से आपका डायरेक्ट नहीं है. ऐसा नहीं है क्वेश्चंस की पूरा का पूरा मतलब डायरेक्टली आ गया. तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं पूरी तरह से पहले समझ लूं क्या बोलना चाहता है.
जब मुझे समझ में आ गया क्या बोलना चाहता है तो डेफिनेटली आई कैन कम टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में आ गया, क्वेश्चन क्या है? इन द ऑथर्स ओपिनियन पिकासोस गुएर्निका क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर जस्टिस सिंस। अब जब मैं ये क्वेश्चन पढ़ लिया, मेरा आंसर रेडी है, आई नो द आंसर। मैं कभी भी ऑप्शन से आंसर नहीं ढूंढूंगा, मैं ऑप्शन में से मेरा जो आंसर है, जो सही आंसर है, जो बेस किया गया, जो मैंने बनाया आफ्टर रीडिंग दी पैसेज, आई नो द आंसर। सी आरसी इज द ओनली क्वेश्चन फॉर्म जहां पे आंसर आपके सामने है, आपके पैसेज में है। सो वंस यू नो द आंसर, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट योर आंसर। व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? इन द ऑथर्स ओपिनियन पिकासोस गुएर्निका क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर जस्टिस बिकॉज वो जो पेन था, वो सफरिंग था, वो अच्छी तरह से वो रिप्रेजेंट कर पाया था, है ना, बाय द यूज ऑफ डिस्टॉर्टेड इमेजेस और ब्लैक एंड व्हाइट एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म जो था, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म से वो जो पेन सफरिंग विक्टिम्स का था वो अच्छी तरह से वो रिप्रेजेंट किया पाया था, वो अच्छी तरह से व्यक्त कर पाया था। बस यही है, दिस इज द आंसर, वी नो द आंसर। अब देखते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शन 1 says now say it was a protest against the German bombing of Guernica, and option 2 says it is expressing the emotional content well with this abstract depiction. Option 3 says it depicts the terror and the suffering of the victims, right? अब जाएंगे किसमें? अगर मैं ऑप्शन 1 में जाता हूं, ये तो पूरी तरह से आपका we can actually eliminate this option. ये मैं eliminate कर सकता हूं. It was a protest against the German bombing of Guernica. Protest तो था, fine. Guernica जो था वो protest तो था, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं कि Guernica क्यों बनाया. मेरा क्वेश्चन ये है कि जस्टिस डिमांड क्यों कर पाया, और जस्टिस क्यों डिमांड कर पाया, जो सेकंड ऑप्शन बता रहा है वो काफी हद तक है ना, और थर्ड ऑप्शन भी काफी हद तक जा रहा है उसी डायरेक्शन में। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है पिकासो मैनेज टू एक्सप्रेस द इमोशनल कंटेंट वेल, ठीक है, वो जो पेन है, जो सफरिंग है, वो अच्छी तरह से वो एक्सप्रेस कर पाए विद हिज एब्स्ट्रैक्ट डिपिक्शन। क्लियर, सही है। लेकिन थर्ड भी देखिए, इट डिपिक्ट्स द टेरर एंड सफरिंग ऑफ द विक्टिम्स, यहां तक तो सही है। लेकिन पिटफॉल्स कैट में व्हाट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इज दिस काइंड ऑफ पिटफॉल्स। नाउ सी इन अ डिस्टॉर्टेड मैनर, पहला वाला पार्ट जो है ऑप्शन का वो तो सही जा रहा था, लेकिन जो सेकेंड पार्ट है उसमें देखिए वो कैसा क्या कर दिया, डिस्टॉर्ट कर दिया। क्या ये सफरिंग अच्छी तरह से व्यक्त कर पाए? नहीं, विकृत तरह से व्यक्त कर पाए। लेकिन एक्चुअली क्या था, अच्छी तरह से व्यक्त कर पाया, विकृत तरह का पेंटिंग था, राइट। तो और फोर्थ क्या बोल रहे थे, मैच्योर वर्क ऑफ पिकासोस पेंटेड व्हेन आर्टिस्ट ड्राफ्टिंग स्किल्स वर एक्सेलेंट। सो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 तो मैं आराम से एलिमिनेट कर सकता हूं, राइट। लेकिन ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में हम लोग, अगर ऑप्शन 3 की तरफ हम लोग अट्रैक्ट होंगे, वो इसलिए होंगे क्योंकि जो सेकेंड पार्ट है, वो सेकेंड पार्ट को हम लोग ठीक से नहीं समझ पाए हैं। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, इट विल बी ऑप्शन 2। दैट्स ऑल। See, related to reading comprehension, very much similar to reading comprehension, you have got this critical reasoning. Critical reasoning. रीजनिंग करना है, क्रिटिकली रीजन करना है। क्योंकि देखो, एज ए मैनेजर मुझे हमेशा रिसोर्सेस और सिचुएशन को समझना पड़ेगा। समझ के मुझे उसका जो पेक्युलैरिटीज है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके अनुकूल मुझे डिसीजंस लेना पड़ेगा। And whenever we'll converse, there will be a lot of arguments. A manager's work is interacting, negotiating, and making people understand things diplomatically, which involve a lot of arguments. और आर्गुमेंट्स में जो प्रिमाइस बोला जाता है उसको समझना जरूरी है। क्या क्या assumptions कर रहा है वो समझना जरूरी है। वो assumptions को मद्देनजर रखते हुए how can I actually conclude the conversation? How can I actually ensure that I can modify or bend the conversation according to my benefits? ये सारे चीज करने के लिए we need to have that power of logic, power of reasoning. Right? Because unless and until I'm able to reason out things, I may not be in a position to take the most, say, optimum decisions based on the situational peculiarities which are going to repeat itself a lot of times in the business environments. Right? So as a result, CAT has introduced these types of questions, and it is very particular on these questions also. ये questions आएगा ही आएगा, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा ही आएगा, क्रिटिकल रीजनिंग आएगा ही आएगा, जिसको हम लोग कभी कभी वर्बल लॉजिक के बड़े अम्ब्रेला का नीचे आ जाता है ये, राइट। यहां पे आपको ये समझना पड़ेगा। सपोज देखो, एक एग्जांपल देता हूं।
मोहन ये कहता है, अरे आई वॉज सरप्राइज टू सी प्रीत ड्रिंकिंग कोक, आई वॉज सरप्राइज टू सी प्रीत सिपिंग ऑन कोक। मैं पूछा भाई क्यों? अरे मोहन भाई अभी सरप्राइज, कोक पी रहे, ठीक है भाई। अरे नहीं, बोला वो पेप्सी में काम करता है, ही वर्क्स फॉर पेप्सी, और मैंने इसको देखा कि वो कोक पी रहा है, राइट? अब मैं सोच में आई कुड अंडरस्टैंड मच। तो यहां पे assumption क्या होगा? व्हाई इज ही सरप्राइज? व्हाई इज ही सरप्राइज? बिकॉज इट्स अ जनरल assumption कि मैं अगर पेप्सी में काम कर रहा हूं ना, मैं पूरी तरह से पेप्सी के लिए ही समर्पित होऊंगा और मैं कोक नहीं पीऊंगा, मैं मुझे तो पेप्सी ही पीना चाहिए। दिस आर द रीजनिंग काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। Why does a person assume things? Based on what experience does he assume things? और assumption के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, right? Fact क्या होता है? Fact और assumption में क्या difference है? क्या मैं factual बात करूं या क्या मैं assumption related बात करूं? Situation क्या है? These are the kind of things. It's a very interesting segment, my dear friends. Very interesting segment. We will be understanding the different facets of CR. Again, this particular session has got only one objective कि ये जो particular question types है उसको हम attempt कैसे करें, क्या methodology है, यही चीज हमें समझना है। Okay? चलो, let's start. So, critical reasoning. अब क्रिटिकल रीजनिंग मैंने बता ही दिया था, राइट? क्रिटिकल रीजनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं कि क्रिटिकल रीजनिंग में तीन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। देयर आर थ्री पार्ट्स व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। द फर्स्ट पार्ट वुड बी is called as say facts. Okay, so let's understand what is facts. फैक्ट क्या होगा? फैक्ट को कभी कभी हम लोग प्रीमाइज भी बोलते हैं। फैक्ट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज प्रीमाइज इन लॉजिक। फैक्ट वो सारे चीजें जो मैं क्या कर सकता हूं? वेरीफाई कर सकता हूं। फैक्ट्स कैन बी वेरीफाइड, टेस्ट कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज अ फैक्ट। ठीक है, तो फैक्ट्स वो सारे चीजें हैं जो मैं वेरीफाई कर सकता हूं। फैक्ट्स कैन बी वेरीफाइड। तो एक एग्जाम्पल अगर मैं लूं फैक्ट का, एंड आई से आई एम 5 feet 7 inches टॉल, क्या मैं ये वेरीफाई कर सकता हूं? यस, आई कैन वेरीफाई दिस। मैं मेजर कर सकता हूं मेरा हाइट को। देयरफॉर आई एम 5 feet 7 inches टॉल बिकम्स अ फैक्ट। ओके, द नेक्स्ट काइंड ऑफ थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज what is the second set. The second set is known as conclusion. Result, जो भी एक आर्गुमेंट जब मैं करूंगा वो आर्गुमेंट का रिजल्ट बेस्ड ऑन फैक्ट, बेस्ड ऑन assumption, क्या रिजल्ट, क्या निचोड़ रहेगा, राइट? सो दिस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द फैक्ट। दैट्स द कंक्लूजन, एंड रिजल्ट, right? So first is fact, second segment would be, or the second ingredient of an say critical reasoning or a kind of premise would be conclusion. अब conclusion क्या हो सकता है? I can reach the top shelf with my hands. ठीक है, मैं एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहा हूं। अपना एक फैक्ट था, I am 5 feet 7 inches tall. कंक्लूजन क्या होगा? Because I am 5 feet 7 inches tall, I can reach. ये मेरा फैक्ट था, because I am 5 feet 7 inches tall, ये फैक्ट था। अब ये फैक्ट के वजह से कंक्लूड क्या कर सकते हैं? I can reach the top shelf with my hands. Right? फाइन। अब जैसे फैक्ट हो गया, मैं कंक्लूजन में ले आया, अब एजम्पशन क्या हो जाएगा इसका? एजम्पशन सिर्फ क्वेश्चन का आंसर होता है। एजम्पशन इज अ वेरी क्रिटिकल पार्ट बिकॉज एजम्पशन टॉक्स अबाउट जनरलाइजेशंस, है ना? मेरा एजम्पशंस आर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस, दे आर बेस्ड ऑन जनरलाइजेशंस। जैसे अगर मैं कहीं पे धुआं देखता हूं, मेरा एजम्पशन है, मुझे पता है कि वहां पे जरूर आग लगा होगा। Where there is smoke, there is fire. Right? तो वही अपना जो एग्जाम्पल था मेरा 5 feet 7 inches वाला, उसको अगर ले आता हूं, why can I reach the top shelf? Because I am 5 feet 7 inches tall. Right? तो फिर assumption क्या हो जाएगा? Any person who is 5 feet 7 inches tall can reach the top shelf. Simple. That becomes the assumption. Right? ये assumption हो गया। So these are the three
very, very critical segments of critical reasoning: facts, conclusion, and assumption. Almost everything is actually based on these 3, 4, 5 things, right? And the next part which I want to talk about is when the questions. When I talk of critical reasoning questions, the questions are again based on, if I talk about very broad kind of categories, I can divide them into 3 broad categories, and one would be miscellaneous. So total would be 4 categories. Right? Questions: identify the assumption, strengthening the argument, weakening the argument, and miscellaneous type of questions. Right? Assumption हम लोग ने समझ ही लिया. What is that generalization? Assumption क्या है जिसके वजह से ये पर्टिकुलर चीज, ये कंक्लूजन लेके आया है. अब अगर आर्गुमेंट है, कोई भी कंक्लूजन है, वो कंक्लूजन को आइदर स्ट्रेंथन करना है या वीकन करना है. राइट? और कुछ जैसे मिसलेनियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है. मैं एक मिसलेनियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आज एक एग्जांपल के रूप में लेता हूं. लेट्स टेक वन क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर कैट पेपर्स एंड लेट्स ट्राई टू सी कि किस तरह से हो सकता है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर प्रीमाइस. ये आर्गुमेंट जो व्यक्त किया गया, इसको पहले हम लोग समझते हैं. Right? Garbage in this neighborhood probably will not be collected until Thursday this week. जो गार्बेज है वो शायद थर्सडे तक, इस नेबरहुड का जो गार्बेज है वो शायद कलेक्ट नहीं होगा. ओके, इंफॉर्मेशन नंबर 1. देन गार्बेज इज यूजुअली कलेक्टेड हियर ऑन वेडनेसडेज. यूजुअली ये तो वेडनेसडेज में कलेक्ट होता है, लेकिन इस हफ्ते जो है वो शायद थर्सडे तक नहीं होगा. अब ये जो मैं बोल रहा हूं, ये जो मेरा कंक्लूजन है, उसका असम्पशन क्या है, क्या बेस करके मैं ये बोल रहा हूं, क्या जनरलाइजेशन है ऐसा. लेट्स सी. और ये भी बात हम लोग को याद रखना है कि गार्बेज कलेक्टर्स इन दिस सिटी आर एक्सट्रीमली रिलायबल, है ना. अगर उनको मंडे आना है तो मंडे आएंगे, अगर वो थर्सडे को आना है तो आएंगे, अगर वो वेडनेसडे जो भी उनका काम आने का जिस दिन उसको आना है वो आएगा. वो रिलायबल, उन पर भरोसा किया जा सकता है. लेकिन फिर भी जो ऑथर है वो बोल रहे हैं कि वैसे तो वेडनेसडे को कलेक्ट होता है, लेकिन ये जो हफ्ता है, इस हफ्ता वो थर्सडे को कलेक्ट होगा. क्यों? क्योंकि मंडे एक पब्लिक हॉलीडे था. हाउएवर मंडे वाज अ पब्लिक हॉलीडे, और एक पब्लिक हॉलीडे के बाद, आफ्टर अ पब्लिक हॉलीडे दैट फॉल्स ऑन ए मंडे, गार्बेज थ्रू आउट द सिटी इज सपोज टू बी कलेक्टेड 1 day लेटर देन यूजुअल. कलेक्टेड 1 day लेटर देन यूजुअल. ठीक है, यानी कि इनका जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन कौन सा एजम्पशन के ऊपर बेस्ड है, ये एजम्पशन हो गया. क्योंकि मंडे एक पब्लिक हॉलीडे था, और जहां पे मंडे को पब्लिक हॉलीडे होता है, तो जो गार्बेज है वो एक दिन बाद कलेक्ट होता है. तो एज ए रिजल्ट ये वीक जो है, ये हफ्ते में मंडे एक हॉलीडे था, तो ये हफ्ते में गार्बेज जो है वेडनेसडेज कलेक्ट नहीं होकर थर्सडेज में कलेक्ट होगा. अंडरस्टूड द प्रीमाइस? दिस इज द आर्गुमेंट. आर्गुमेंट आपके सामने है. आर्गुमेंट पूरी तरह से हम समझ में आ गया. राइट? तो किस पर्टिकुलर पैटर्न है, किस पैटर्न से है? एक जो चीज हमेशा होता है, एक जो चीज जनरलाइज्ड है, एक जो चीज हमेशा उन्होंने देखा है होते हुए, वो जनरलाइज्ड वर्जन को एज्यूम करके एक स्पेसिफिक सिचुएशन जो इस हफ्ते का है उसमें इंप्लीमेंट किया है उन्होंने. ठीक है ना? जो होते रहता है वो एक एज्यूम्पशन को उन्होंने इस वीक का कंक्लूजन में से बनाया है. राइट? सो दिस इज व्हाट हैज बीन डन. वेरी सिंपल. नाउ लेट्स सी व्हाट्स द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है द आर्गुमेंट प्रोसीड्स बाय. आर्गुमेंट किस बिना पे बनाया गया है? कि वो जो भाई साहब बोले हैं कि ये जो हफ्ता है, दिस वीक गार्बेज विल बी कलेक्टेड 1 day लेटर देन यूजुअल. ये आपका कंक्लूजन किस बिना पे आया साहब? राइट? हमें पता है किस बिना पे आए. वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट हैपेंस नॉर्मली, एंड देयरफॉर ही हैज पुट that particular experience in this week. Simple. Right? Now let's look at the say options. Treating several pieces of irrelevant evidences. No sir. There is no several piece. बहुत सारे pieces of evidences नहीं है, और evidence irrelevant तो बिल्कुल ही नहीं है. ये बिल्कुल ही लॉजिक नहीं बैठता. irrelevant evidence. एविडेंस अगर हो, irrelevant कैसे होगा? अगर irrelevant हो तो एविडेंस कैसे होगा? सो डेफिनेटली these are the tricks of words, right, which you need to understand.
several pieces of irrelevant, this can be eliminated. Immense. क्योंकि हमें पता है कि जो हो रहा है, जो नॉर्मली होता है, वो जनरलाइज वर्जन को एक सिचुएशन में उन्हें इनपुट किया है. वी नो हाउ इट हैज प्रोसीडेड. बी क्या बोल रहा है? बी बोल रहा है इनडायरेक्टली एस्टैब्लिशिंग. नो, देयर इज नो इनडायरेक्ट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनीथिंग. इट इज ए डायरेक्ट कोरिलेट किया गया है. इट्स डायरेक्ट कोरिलेशन. सो डेफिनेटली ऑप्शन बी कैन ऑल्सो बी एलिमिनेटेड. Right? And it further states, the one thing is likely to occur by directly ruling out all the alternative. So there is nothing like ruling out. यहाँ पे तो ऑल्टरनेटिव ही नहीं है. यहां पे तो यही बताया गया कि ऐसा ही होता है और इस बार भी ऐसा ही होगा. There is no ruling out. So option A and B can immediately be eliminated. है ना. ऑप्शन सी, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक ए जनरल रूल. सी, राइट, वी हैव गॉट ए जनरल रूल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन दैट अलाउस एप्लीकेशन ऑफ ए जनरल रूल टू ए स्पेसिफिक केस. परफेक्ट. टू ए स्पेसिफिक केस. स्पेसिफिक केस ये हफ्ता, जनरल रूल जो होते आ रहा है. So C can be the correct one. Let's go and see what D talks about. D is also talking about generalizing. Okay, about all actions of a certain kind. All actions only of a certain kind. यहां पे इतने टाइप ऑफ एक्शंस के बारे में तो कुछ बताया नहीं गया है. ऑन द बेसिस ऑफ ए डिस्क्रिप्शन ऑफ वन सच एक्शन. नो, देयर आर नॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ. सी, दीज आर अगेन प्लेइंग ऑफ वर्ड्स. दिस इज वेयर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश बिकम्स वेरी वेरी क्रिटिकल. इसीलिए मैं हमेशा बोलते रहूंगा, पढ़ो, अच्छे किताबें पढ़ो, अच्छे मटेरियल पढ़ो, एटलीस्ट एडिटोरियल्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, संडे तो पढ़ो ही पढ़ो. राइट. सो अगर मुझे समझ में आ जाता है, देयर इज नो अदर challenges as such, then challenges are minimized. So सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर will always be option C. Simple. Okay, so this is how critical reasoning goes about. Very easy, very simple. But only thing is, understand the right approach. Understand the right approach. That is important. Fill in the blanks or sentence completion type of questions. Right? अब ये जो है, this is also based on your verbal logic. इसमें बेसिक चीज जो हमें समझना है, most of us follow a very wrong method of solving these kind of questions. ये क्वेश्चंस हम लोग जो सब सॉल्व करने निकलते हैं, तो जो मेथोडोलॉजी अपनाते हैं उसमें बहुत बड़ा गड़बड़ है. हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग ब्लैंक को देखते हैं, ऑप्शंस को देखते हैं, ऑप्शन से वर्ड लेते हैं, ब्लैंक में पुट करते हैं, फिर देखते हैं अरे यार ठीक हो रहा है क्या, इज इट एक्चुअली मैचिंग, सुंदर लग रहा है, सुनाई में अच्छा दे रहा है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास यही होना चाहिए. नो, दैट इज नॉट द रॉन्ग, दैट इज नॉट द राइट वे टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. इट इज अ रॉन्ग मेथड. यहां पे एटलीस्ट फॉर कैट forget. हाँ, कुछ सिंपल वाले fill in the blanks हो, जैसे grammar is, was, related हो, that is different. I'm not talking about those very 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 simple kind of fill in the blanks questions, right? यहां पे मैं बात कर रहा हूं कैट लेवल की, कैट लेवल वाले fill in the blanks, जहां पे आपका vocab का, नॉलेज का भी टेस्ट किया जाएगा, राइट? तो यहां पे मैं क्या करूंगा, when I solve the fill in the blanks or the sentence completion questions for cat, I have to be very careful and I need to become Sherlock Holmes. I need to become the investigator genius, right? I need to employ my art of deduction. कैसे? जो भी सेंटेंस है वो सेंटेंस को आराम से पढ़िए, क्लूज ढूंढिए. क्या क्लूज है जो मुझे मिलेगा कि किस तरह का वर्ड वो ब्लैंक को फिट करेगा, वो ब्लैंक में किस तरह का वर्ड आएगा, किस तरह का वर्ड आएगा वो ऑप्शन नहीं बताएगा, वो आपका एनालिसिस ऑफ द सेंटेंस बताएगा. कैसे आप वो एनालाइज करोगे, क्या है वो क्लूज, किस तरह से वो क्लूज निकलना है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस ट्यूटोरियल, राइट? फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग ये समझेंगे कि ये जो मेथड ये अप्लाई कैसे करें. The only rule is do not go to the options directly. If you go to the options, you will get confused. And once you are getting confused, then you are going to lose time. ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा.
ये कंफ्यूजन है। चलो देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में क्या मेथड एम्प्लॉय करना है। Now, let's try to understand the fill in the blanks approach. This is very important, right? Fill in the blanks आपका almost सभी exams types में आ जाएगा. Almost every exams will have fill in the blanks. CAT में तो होगा ही होगा. जैसा हमें याद क्या रखना है fill in the blanks में? Do not go to the options. As a result यहाँ पे हमने option नहीं दिया है अभी, right? So let us try to find out कि ये जो sentence है, ये sentence में मुझे क्या क्या क्लूज मिल रहा है, ताकि दो ब्लैंक्स मुझे दिखाई दे रहा है. आई हैव टू फिल बोथ दिस ब्लैंक्स. लेट मी सी हाउ वी कैन फिल बोथ दिस ब्लैंक्स. राइट, फीलिंग गिडी इन द हीट. गिडी मतलब हमें थोड़ा सा वो बहुत ज्यादा अगर गर्मी हो, राइट, जैसा हीट बोला जा रहा है, फीलिंग गिडी इन द डैश हीट. तो डैश में क्या हो जाएगा, हीट है ना, एक डिजीनेस आ जाता है ना, ठीक, बेचैनी से आ जाता है. Having a sensation of whirling and a tendency to fall, right? Feeling dizzy, है ना, हमें थोड़ा सा बेचैनी था, है ना, फीलिंग जो होता है. फीलिंग गिडी इन द हीट, किस तरह का हीट होगा ये? डेफिनेटली बहुत ज्यादा हीट है. एंड दिस इल्यूजन, व्हाट इज दिस इल्यूजन? दिस इल्यूजन मतलब जहां से मैं भ्रम से निकल आया हूं, मेरे को जो लगता था सही है, वो जब मुझे समझ में आ जाता है, अरे ये तो सत्य नहीं था, तो मिथ्या था. Disappointed is someone or something that one discovers to be less good than one had believed. यानी कि उनको कुछ गलत फहमी था, अभी वो गलत फहमी और नहीं है. तो फीलिंग डिजी इन दिस भयंकर वाला हीट, और पूरी तरह से जब उनको जो भ्रम था वो कट गया, बाय द डैश ट्रीटमेंट मेटेड आउट. जो भ्रम कट गया तो ट्रीटमेंट किस तरह का होगा? अच्छा ट्रीटमेंट होगा, बुरा ट्रीटमेंट होगा. जो मेरे को लगता था कि ये अच्छा है लेकिन वो अच्छा नहीं है ना. डिसअपॉइंटेड इन समवन और समथिंग दैट वन व्हेन वन डिस्कवर्स टू बी लेस गुड, दैट इज डिसइल्यूजन. तो मुझे पता लग गया कि ये इतना अच्छा नहीं है, तो ट्रीटमेंट कैसा होगा? डेफिनेटली अच्छा नहीं होगा, बुरा होगा. तो मुझे यह पता लग गया कि मेरा दोनों ब्लैंक में किस तरह का वर्ड्स आएंगे. पहला ब्लैंक में क्या आएगा? बहुत ज्यादा भयंकर गर्मी. और दूसरा ब्लैंक में किस तरह का ट्रीटमेंट होगा? ट्रीटमेंट होगा आपका जो उतना ज्यादा अच्छा नहीं हो, मेटेड आउट, जो मुझे मिला. राइट, तो ये दोनों चीजों के वजह से एक तो उसका थोड़ा बेचैनी लग रहा था, और वो वापस घर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि जिस तरह का ट्रीटमेंट उसको मिला है, जहां से भी वो आया वहां वापस नहीं जाना चाहता था, चाहे वो घर हो, जहां से भी वो आ रहे हो. इसलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया? ही डिसाइडेड टू जस्ट लाई डाउन अंडर द शेड ऑफ ए ट्री एंड डोज ऑफ. है ना, तो वो ये डिसाइड किया कि कोई भी पेड़ के छाव में लेट जाता हूं और मैं सो जाता हूं, थोड़ा, है ना, नींद ले लेता हूं. ओके, अब देखिए हम लोग ने क्या किया. वी डू नॉट हैव एनी आइडिया ऑफ द ऑप्शन, ऑप्शन का आइडिया नहीं है, राइट, बट वी नो द वर्ड्स. सो अभी जो है, अब जब मैं ऑप्शंस में एनालाइज करने जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? ये दो वर्ड्स कौन सा ऑप्शन में है, मुझे पता है वर्ड्स कौन किस तरह का होना चाहिए. एक तो भयंकर गर्मी होना चाहिए, एक गंदा ट्रीटमेंट होना चाहिए, अच्छा नहीं है ट्रीटमेंट. नाउ लेट अस गो फॉर द ऑप्शंस. राइट, ओप्रेसिव का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत हार्श ट्रीटमेंट. अब हीट भी हार्श हो सकता है, ओप्रेसिव हो सकता है. ठीक है, ओप्रेसिव थोड़ा बहुत हम लोग, चलो, भयंकर ओप्रेसिव मतलब आपको एकदम दबाने वाला, आपको तकलीफ पहुंचाने वाला गर्मी. लेकिन उतना भी नहीं होता है, उतना जल नहीं करता, लेकिन फिर भी हम लोग उसे खींच के बोल सकते हैं, हाँ हो तो सकता है ओप्रेसिव ही. लेकिन क्या पार्टीशन ट्रीटमेंट हो सकता है? क्योंकि पार्टीशन का मतलब क्या हो जाता है? जो भयंकर रूप से किसी चीज का फैन हो, किसी व्यक्ति का फैन हो, किसी पार्टी का भक्त हो पूरी तरह से, अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ ए पार्टी, कॉज और ए पर्सन. मैं बहुत भयंकर अंधा भक्त जिसको बोलते हैं, वो हो गया पार्टीशन. राइट, क्या ये वर्ड अपना गलत, बुरा ट्रीटमेंट के साथ मैच कर रहा है? नहीं. तो ऑप्शन 1 तो क्या हो गया? ऑप्शन 1 कैन बी एलिमिनेटेड. ऑप्शन 2 बोल रहे स्कॉचिंग एंड स्टेप मदरली. स्कॉचिंग हीट के साथ बहुत ज्यादा यूज होता है ये, भयंकर जो है ना गर्मी, भयानक गर्मी, वेरी 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 हॉट इज स्कॉचिंग.
जो समर सीजन में दोपहर के 2 बजे, है ना, स्कॉचिंग हीट। स्कॉचिंग शॉट भी हो सकता है, स्कॉचिंग स्पीड भी हो सकता है। स्कॉचिंग स्पीड क्या हो जाएगा? बहुत हाई स्पीड। स्कॉचिंग शॉट मतलब तड़ाके वाला शॉट, क्रिकेट शॉट मारा, राइट? दैट कैन ऑल्सो बी डन। दोस आर फिगरेटिव, उनको फिगरेटिव यूसेजेस बोलते हैं। स्टेप मदरली मतलब सौतेला व्यवहार, सौतेला व्यवहार, यानी कि वो व्यवहार जिससे आपको किसी भी तरह का आनंद ना मिला। अब ये दोनों वर्ड्स है, ये दोनों वर्ड्स आपका दोनों ब्लैंक में आराम से फिट हो रहा है, राइट? हम लोग का जो वर्ड्स था पहला क्या था? हम लोग ने सोच रखा था कि भयंकर हीट स्कॉचिंग हीट हो सकता है, और बुरा व्यवहार स्टेप मदरली बिहेवियर हो सकता है, ट्रीटमेंट हो सकता है। ये सेकंड वाला जो है ये तो सही आंसर हो सकता है। इसमें बढ़िया कोई और ऑप्शन है क्या? रिप्रेसिव परमिसिव। रिप्रेसिव मतलब रोकना, रेस्ट्रेन करना, आपको रोकना। तो हीट आपको रिप्रेसिव टू एन एक्सटेंट कि हाँ मुझे घर से बाहर निकलने नहीं दे रहा है। हाँ, हो सकता है मैं इस तरह से इसको रिलेट करूं। लेकिन जो सेकंड वाला वर्ड है खराब, लेकिन परमिसिव क्या है? जहां पे मैं पूरी तरह से आपके अलाउ कर रहा हूं। परमिसिव ट्रीटमेंट अगर होता तो मेरा जो भाई साहब है वो खुश रहता, वो ऐसे ही रास्ते में किसी पेड़ के नीचे नहीं सो जाता। तो डेफिनेटली सेकंड वाला वर्ड परमिसिव जो है वो सेकंड ब्लैंक के साथ नहीं जा रहा है। थर्ड इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। मेलाइनेंट, malignant is anything which is causing harm to you, evil in nature or effect. malevolent, malevolent क्या हो जाएगा? benevolent का एंटोनिम है। benevolent जो आपके लिए अच्छा हो, बेनिफिशियल हो। malevolent जो आपका दुष्चिंतक हो, खराब चिंतक हो, है ना, जो आप चाहे कि आपके हमेशा जिंदगी में प्रॉब्लम्स आए, आप सफल नहीं हो ना, वो हो गया malignant। अब malignant हीट ये कुछ समझ में नहीं आता है ज्यादा। और अनफैटमेबल क्या हो जाता है? अनफैटमेबल जो मैं पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा हूं, पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा हूं, इतना विशाल है वो, है ना। ज्ञान का गंगा जैसा भगवद गीता है, भगवद गीता को पूरी तरह से समझना, ओहो, इट्स डेप्थलेस, पता नहीं कितना ज्ञान है उसमें, राइट? सो ये दोनों ही मेरा वर्ड्स के साथ मैच नहीं कर रहा है, मेरा जो वर्ड्स है, राइट, मेरा या अपना वर्ड्स है। लास्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं, अनबेरेबल, डेट्रीमेंटल। अनबेरेबल जो मैं सह नहीं पा रहा हूं, हाँ ये हीट के साथ जा सकता है। नॉट एबल टू बी एंड्योर, टॉलरेट नहीं कर पा रहा हूं, राइट, हीट के साथ जा सकता है। लेकिन जो सेकेंड वर्ड है डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल इस अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो ये आपका रिजल्ट्स पे डेट्रीमेंटल इफेक्ट लाएगा, बुरा इफेक्ट लाएगा, इफेक्ट बुरा लाएगा। डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट वो कैसे? ठीक है, डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट के साथ अगर डॉक्टर का ट्रीटमेंट डेट्रीमेंटल होता है तो आप जरूर प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर एक ही है, विच इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, थिंग्स आर सिंपल, ओनली थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द राइट अप्रोच। ओके, ग्रेट। So, the final phase of this session, I'd just like to, describe the types of questions that basically come under the umbrella of grammar, sentence correction, spotting the error, all those things. Okay. Now see, when we are talking about CAT, grammar-related questions 1, 2, maximum 3, right? This is the trend these days, as far as CAT is concerned. But most of the other competitive exams, they have got a good percentage of questions being dedicated to the grammatical nuances, right? अब देखिए कैट में क्या है, कैट में किस किस तरह का है। फॉर एग्जाम्पल वो लोग यूसेज बेस्ड ज्यादा करते हैं। अब मान लीजिए कि आपको मैं एक ऐसा सेंटेंस बोला, बताइए, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए आप। आई सॉ ए बिल्डिंग विच वॉज बोथ डैमेज्ड एंड डिस्ट्रॉयड। I saw a building which was both damaged and destroyed. I saw a building which was both damaged as well as destroyed. ठीक है, अब इसमें गलती क्या है? क्या गलती है? मैं एक बिल्डिंग देखा जो कि डैमेज भी था और डिस्ट्रॉयड भी था। प्रॉब्लम क्या है? यस, यू हैव आइडेंटिफाइड इट करेक्टली, आई गेस। डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड दोनों एक साथ एक ही बिल्डिंग में
नहीं हो सकता है। तो ये कैट का डैमेज क्या होता है? डैमेज मतलब कहीं थोड़ा बहुत टूटा फूटा होगा, क्रैक होगा, कुछ डैमेज है। और डिस्ट्रॉयड का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय का मतलब पूरी तरह से खंडर बन गया, पूरा टूट के गिर गया वो, राइट। तो एक चीज जो डैमेज्ड है वो डिस्ट्रॉयड भी नहीं हो सकता है, अगर वो डिस्ट्रॉयड है तो वो डैमेज नहीं हो सकता, दोनों एक साथ होना मुश्किल हो जाता है। तो यही कुछ चीजें हैं यूसेज बेस्ड है जो कैट आपको टेस्ट करने की कोशिश करती है। हम लोग काफी बार ये यूज करते हैं, प्लीज फॉरवर्ड दिस लेटर टू द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट, जबकि सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? प्लीज फॉरवर्ड दिस लेटर टू द डिपार्टमेंट कंसर्न, क्योंकि अगर मैं कंसर्न डिपार्टमेंट, कंसर्न मतलब मदर इज ऑलवेज कंसर्न अबाउट हर चाइल्ड, हमेशा मदर जो है अपने बच्चे के लिए कंसर्न रहेगी, सोचते रहेगी, उनके कुशल मंगल करते रहेगी, कुशलता के लिए, है ना। मदर इज ऑलवेज कंसर्न अबाउट द चाइल्ड। तो डिपार्टमेंट क्या कंसर्न डिपार्टमेंट ऐसा कोई डिपार्टमेंट होगा? नहीं। हम लोग क्या बोलना चाहते हैं? इस चिट्ठी को वही डिपार्टमेंट में दीजिए जो डिपार्टमेंट बेसिकली इस चिट्ठी में जो लिखा हुआ काम है उसके प्रति एसोसिएटेड हो, राइट। सो क्या हो जाएगा? प्लीज फॉरवर्ड दिस लेटर टू द डिपार्टमेंट कंसर्न। हम लोग काफी बार ऐसे ही बोलते हैं ना। अब देखिए आजकल तो ये भी बोला जा रहा है कि स्टैंड अप इज फूलिश। क्यों? क्योंकि मैं स्टैंड तो डाउन नहीं हो सकता, तो प्लीज स्टैंड इज इनफ। आजकल ऐसा भी हो रहा है, सिट डाउन इज अगेन फूलिश। क्या मैं नीचे नहीं होके क्या ऊपर बैठ सकता हूं? नहीं बैठ सकता हूं। आई हैव टू सिट। सिट और स्टैंड इज इक्वली एफिशिएंट इनफ। So these things are changing gradually. तो ये सारे चीजें, this is what CAT will test, right? क्या आपका basic permutation and combination of sentences क्या सही है? Okay? तो यहां पे आपका spotting the error हो सकता है, odd man, odd sentence, या फिर ये एक sentence जिसमें कोई गलती हो वो निकाल। हाँ, CAT sometimes actually goes into the details. Right, comma, full stop, exclamation marks, everything. Right, everything is tested. Right, so we'll be discussing a sample, an example, and then we'll come to the end of this session. Okay? Okay. So the last part, as I said, we'll have a small kind of understanding about the spotting error questions, जो CAT का है, मतलब बहुत सिंपल है, एज सच बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखो ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने लिया है, राइट। जहाँ पे आप देखोगे तो क्या है, यहाँ पे आपका 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। अब ये निकालना है कि ए में कोई प्रॉब्लम है, कि बी में है, सी में है, कि डी में है, राइट। अब इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, इन रेस्पॉन्स टू द एलिगेशंस एंड कंडेमनेशन पोरिंग इन, जो एलिगेशंस और कंडेमनेशंस है ना, यानी कि किसी चीज का आलोचना किया जा रहा है, इसका रेस्पॉन्स में नाइकी जो कंपनी है उसने क्या किया? इंप्लीमेंटेड कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस इन द लेबर पॉलिसी। तो उनका जो लेबर पॉलिसी है उसमें काफी सारे चेंजेस कर दिए, क्योंकि इट वाज नॉट बीइंग एक्सेप्टेड, है ना। लोगों का बहुत ज्यादा उसमें कंप्लेंट्स थे, दे एक्चुअली रिवॉल्टेड अगेंस्ट द लेबर पॉलिसी। तो एज ए रिजल्ट नाइकी जो कंपनी है उसने चेंजेस कर दिया। अब इसमें एरर कहां पे? ए में है, बी में है, सी में है, कि डी में है? वेरी इजी, नो, द एरर इज इन ऑप्शन डी, है ना, या जो उस सेंटेंस पार्ट जो डी में है। क्योंकि जो नाइकी है, देखिए नाइकी एक कंपनी है, कंपनी को मैं प्लूरल प्रोनाउन देयर के साथ इसको रिलेट करना गलत है, राइट। क्योंकि मैं पर्सोनिफिकेशन अगर करना चाहता हूं फिर भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, राइट। क्योंकि ये एक सिंगुलर कंपनी है। अगर जैसे बॉयज होता, गर्ल्स होता, विमेन होता, मेन होता, तो डेफिनेटली मैं देयर के साथ जा सकता था, राइट। लेकिन अगर ये कंपनी है, इसमें क्या हो जाएगा? देयर के जगह इट विल बिकम इट। इसको थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं। देखिए क्या होगा, दिस इज द आंसर। अब आंसर क्यों है ये? क्योंकि हमें वो निकालना है कौन सा ऑप्शन में प्रॉब्लम है, राइट। सो डी बिकम्स योर आंसर। लेकिन इसको और थोड़ा समझने के लिए ना, सी द कंपनी विल इश्यू, देयर होगा कि इट्स एनुअल रिपोर्ट नेक्स्ट मंथ। क्या करेंगे इसमें? कंपनी इश्यू करेगा, कंपनी है, सिंगुलर है, तो कंपनी है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इट्स हो जाएगा। ये आपको समझना है थोड़ा, राइट। और एक एग्जांपल लेते हैं, जूरी जो है वो उनका डिसीजन। अब यहां पे जो है, यहां पे जूरी को ऐसे
कलेक्टिव नाउन लिया गया है, एक सिंगल एंटिटी लिया गया है, एज ए रिजल्ट इसको इट्स में ही रखा गया। लेकिन ये जो तीसरा एग्जाम्पल है, यहां पे देखिए, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यानी कि जूरी के जो मेंबर्स थे वो सभी का ओपिनियन एक नहीं था, और यहां पे जूरी का जो एक एक मेंबर है उनको अलग अलग लिया गया है, तो फिर क्या हो गया, देयर ओपिनियन। समझ में आया? सो दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड देयर। इट्स मैं तब यूज करूंगा जब मैं सिंगुलैरिटी को दिखा रहा हूं, और देयर मैं मोस्ट ऑफ द टाइम तब यूज करूंगा जब मैं प्लुरैलिटी को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, अच्छी तरह से पढ़िए, अच्छी तरह से सीखिए। ओके, सो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड द अप्रोच। ये जो सेशन था, इस सेशन का एकमात्र जो ऑब्जेक्टिव था, इट वाज मेकिंग यू अंडरस्टैंड व्हाट अप्रोच should be taken up in order to answer different types of questions. Very soon I'll be following it up with a tutorial on parajumbles, right? And then we'll go and solve certain kind of, say full length papers also. So keep preparing. All the best.